آغاز میں آپ کو بتائیں ملک بھر میں کہیں بھی شوال کا چاند عید الفطر کل بروز ہفتہ ہوگی، یہ اعلان مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ مرکزی صورت ہلال کمیٹی کے اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ ملک بھر میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی منعقد ہوئے لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ ملک بھر میں کسی بھی مقام پر شوال کا چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی۔ عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتہ ہوگی، اس بات کا اعلان چیئرمین مرکزی صورت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اسلام آباد میں اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں کیا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1444 ہجری 22 اپریل 2023 بروز ہفتہ کو ہوگی۔ چاند کی رویت کے لیے زونل حلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے۔ لاہور میں زونل کمیٹی کو صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر سے شوال کے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ کراچی میں زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات آفس میں ہوا۔ سندھ بھر سے کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کوئٹہ کی زونل کمیٹی نے بھی چاند کی کوئی شہادت نہ ملنے پر رپورٹ مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بھجوا دی۔ پشاور میں بھی زونل کمیٹی کو شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ ادھر مسجد قاسم علی خان میں مفتی پوپلزئی کی صدارت میں غیر سرکاری رویت حلال کمیٹی کے اجلاس میں بھی خیبر پختونخوا میں کہیں سے چاند نظر آنے کی اطلاع نہ ملنے پر ہفتے کے روز عید کا اعلان کر دیا گیا۔ موقع ہو عید کا تو خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے لڑکیاں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرتی۔ عید پر چاند چہرے پر مزید نکھار لانے کے لیے ان دنوں ہائیڈرا فیشل ٹریٹمنٹس لینے کا ٹرینڈ ہے عروج پر۔ چہرے اور جلد پر تر و تازگی لانے کے لیے کون سی ٹریٹمنٹ لی جا رہی ہے، بتا رہی ہیں اسلام آباد سے فوزیہ علی۔ عید سے قبل ہی لڑکیوں کو چاہیے تر و تازہ جلد اور چہرے پر نکھار، اسی لیے تو دلکشی بڑھانے کے لیے انہوں نے شروع کر لی ہے تیاری۔ ہائیڈرا فیشل سے اب مرجھائی جلد کو تر و تازہ بنانا ہے ممکن تو پیکو لیزر، کرائیو لیزر اور مائکرو نیڈلنگ سے جلد کی تہوں میں جا کر داغ، دھبوں، جھریوں اور چھائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹرز عید سے پہلے ان ٹریٹمنٹس کا مشورہ دیتے ہیں۔ لڑکیاں آتی ہیں اسکن گلو کے لیے اینڈ دے ڈیمانڈ سم پروسیجر جو کہ ایک امیجیٹ رزلٹ دے، تو اس میں پیکو لیزر از اے برائٹننگ لیزر، بڑا اچھا گلو دیتا ہے۔ کین گو ود لیزرز، برائٹننگ ٹریٹمنٹس، ایون ہائیڈرا فیشیل جو تھورو کلینزنگ آف دا اسکن ہوتا ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک فریشنس آ جائے چہرے پہ۔ لڑکیاں اپنی جلد کے مسائل کی مناسبت سے فیشلز اور ٹریٹمنٹس لے کر خوش ہیں۔ عید پر انہیں فریش اور گلوئی جلد جو چاہیے۔ رمضان میں ہم لوگ آئلی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ اسکن جو ہے وہ ہماری ڈیمیج ہو جاتی ہے کافی زیادہ، تو اس طرح ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عید پہ اچھا دکھے، تو اسی لیے مختلف فیشلز کرواتے ہیں، ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں۔ عید بھی آ رہی ہے تو ہر لڑکی چاہتی ہے کہ مطلب کہ اسکن فریش لگے وداؤٹ میک اپ، تو یہ ٹریٹمنٹس کافی بیسٹ ہیں نو میک اپ لک کے لیے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے کوئی بھی ٹریٹمنٹ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ کسی ماہر مالج سے مشورہ ضرور لے لیا جائے۔ عید پر چاہے ہر کوئی ایسا رنگ روپ کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، اسی لیے تو ہائیڈرا فیشل سمیت جدید ٹریٹمنٹ سے لڑکیوں کی اولین پسند۔ کیمرامین انجم فاطمی کے ساتھ فوزیہ علی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کے وارنٹ کی کاپی منظر عام پر آ گئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ عمران خان کے 20,000 روپے کے عوض ضمانت وارنٹ جاری ہوئے۔ عمران خان کو 25 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کی درخواست پر سپریم کورٹ میں بڑی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم واپس نہیں ہوگا۔ عدالتی فیصلہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے معاملہ حل کریں۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان بھی لچک دکھائیں گے۔ پنجاب میں فصلوں کی کٹائی اور حج کے بعد کی تاریخ رکھ لی جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ قائدین کی مشاورت جاری ہے، مزید وقت دیا جائے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ استدعا کی گئی۔ سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ملک
मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल और हुकूमत से सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पेशरफ्त रिपोर्ट 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा, अदालत 14 मई को इंतखाबात का फैसला वापस नहीं लेगी, क्योंकि अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं। मुल्क की मरकजी सियासी जमातों के रहनुमा अदालत उज़्मा में पेश हुए, मामले पर अदालत में अपनी आरा पेश की। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालती समाअत में वक्फे के दौरान फारूक नाइक और अटॉर्नी जनरल ने जजेस से चैम्बर में मुलाकात की। बताया कि सियासी कायदीन ईद मनाने जा चुके हैं। ये भी बताया गया कि हुकूमती इत्तेहाद के पार्टी सरबराहान का इजलास 26 अप्रैल को होगा। अदालत को मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज नहीं। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज 14 मई को पंजाब इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी। इससे कबल समाअत के दौरान अदालती हुक्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ, MQM और BNP के मरकजी कायदीन 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एजाज है। अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियां बनती हैं। सियासी कायदीन अफाम व तफहीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। PTI के शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अदालत के हर लफ्ज का एहतराम करते हैं। मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है। वकील फारूक नाइक ने कहा, ईद के फौरी बाद सियासी डायलॉग हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मुकम्मल करेंगे, फिर PTI से मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अदलिया, अफवाज और इलेक्शन कमीशन को सियासत से दूर रहना चाहिए। बड़ी ईद के बाद मुनासिब तारीख पर इलेक्शन होने चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, माहौल मुश्किल है, लेकिन 22 करोड़ आवाम का मसला है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, इसके लिए मुज़ाकरात पर पूरी तरह तैयार हैं। शेख रशीद ने अदालत में मौक़िफ़ दिया कि अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक चीमा, BNP के रहनुमा मोहम्मद इसरारुल्लाह तरीन ने कहा, सियासी डायलॉग के जरिए मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात की कामयाबी नामुमकिन। ऐसी सूरत हाल में इत्तेहादियों को नहीं मना सकेंगे। इत्तेहादी मुज़ाकरात सिर्फ पार्लियामान में चाहते हैं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। ऐसा हुआ तो बाकी सूबों के इंतखाबात मुतासर होंगे। हम पूरे मुल्क में एक ही रोज़ पोलिंग की हामी हैं। 90 रोज़ के कानून की खिलाफ वर्जी हमने नहीं, किसी और ने की। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 90 दिन के आर में जबरदस्ती पंजाब का इलेक्शंस पहले करवाना का साजिश है। सूबाए पंजाब में इलेक्शंस पहले करवाया जाए तो उनके रिजल्ट्स जो है वो हमेशा के लिए पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान पे असर करेगा। अपने पहले इत्तेहादियों के इस बात पे मना लें कि डायलॉग करना ज़रूरी है कि हम सब वन डे पे मुल्क भर में इलेक्शंस करवाने के हामी हैं। हमारे इत्तेहादी समझते हैं और उनके इस बात को मैं एग्री भी करता हूँ कि डायलॉग जो सियासी जमातों की काम है, नामुमकिन है कि हम इनको इस बात पे मनाएं कि सुप्रीम कोर्ट की पंचायत में आप अपना बातचीत करें, ख़ास तौर पे जब ये अक्सरियती फ़ैसला जो है वो हमारे सर पे एक बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि नो वन कैन नेगोशिएट विद अ गन टू देयर हेड। जो 3-2 का फ़ैसला है, जो अक़लियती फ़ैसला है कि हम पे मुसल्लत करने की कोशिश किया जा रहा है, दैट इज़ द गन टू आवर हेड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश रहा है और रहेगा कि हम अपने इत्तेहादियों को कायल करें। मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शन होने का जो सिलसिला है उस पर एक कंसेंसस कायम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने से एक बार फिर साफ इनकार कर दिया। कहा कि चेयरमैन PTI से बात करना सियासत और पार्लियामेंट की तौहीन है। रिया खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जिस शख्स को नाअहल हो जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बना रही है। अदालत उसमें अपने रवैये में लचक पैदा करे। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्या वो अदालत है या वो पंचायत है। जिस तरह वो इंसाफ के मंदिर से हथौड़ा बजा रहे हैं, आइन की रूह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना नागुज़ीर है, लेकिन अगर इमरान खान किसी एक तारीख पर आपसे इत्तेफाक कर लें तो फिर कबूल है। ये कौन सा आइन है? जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रही है। जिस बेंच के ऊपर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया है और पार्लियामेंट के फैसले से उसको आगाह किया है
आज उस बेंच के सामने मैं पेश हो जाऊं। लिहाजा न बेंच के सामने पेश होना ये पार्लियामेंट के करारदाद का तकाजा है, न उनके सामने उनको इत्मीनान दिलाना कि जी हम तो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश है? किस शख्स से हम मुज़ाकरात करें? अगर वो वाकई इलेक्शन चाहता तो उस वक्त कौमी असम्बली क्यों नहीं तोड़ रहा था? उस वक्त पंजाब और केपी की हुकूमत क्यों नहीं तोड़ रहा था? सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी वो है कि जिस पे अगर वो इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारी लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते? इंशाअल्लाह मुज़ाकरात का नौबत नहीं आई। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को जलील कर रहे हैं। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने मुलाकात की। मुल्की दिफा और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान वक्फे में वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। अस्करी हुकाम ने भी खुसूसी शिरकत की। हसास इदारे के सरबराह ने भी इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में PTI समेत सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से उमूर पर भी गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अपने इंतखाब के बाद ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने उनसे हल्फ लिया। अनवारुल हक चौधरी का कहना है कि आवाम की खिदमत उनका मिशन है। तफसील के लिए रिपोर्ट। कई रोज के जोड़ तोड़ के बाद आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा का मसला हल हो गया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक आजाद कश्मीर के बिला मुकाबला वजीर आजम मुंतखब हो गए। इनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, ताहम फिर भी ऐवान में वोटिंग कराई गई तो 48 MLAs ने इनको वोट दिया। वो आजाद कश्मीर के 15वें वजीर आजम हैं। इनकी हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद हुई। मुजफ्फराबाद में सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इनसे हल्फ लिया। तकरीब में अरकान असम्बली, सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि मुनसिफाना तरीके से चलें तो हम रियासत की तकदीर बदल सकते हैं। गुफ्तगू से कभी तब्दीली नहीं आती, अपने अमल से साबित करें कि आपका विजन क्या है। चौधरी अनवारुल हक LA 7 नवंबर से 2021 के आम इंतखाबात में मेंबर असम्बली मुंतखब हुए और वो बतौर स्पीकर कानून साज असम्बली खिदमात अंजाम दे रहे थे। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आने की दो वजूहात हैं, जिनमें पहली जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी रेफरेंस और दूसरी वजह जजेस की तैनाती का मामला है। अदालत में तकसीम है। मैं समझता हूँ कि आज जो तकसीम नज़र आ रही है उसकी बुनियादी वजह काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ जो एक बदनीयती पर मबनी रेफरेंस था, उसके बाद अदालत बहुत बुरी तरह डिवाइड हो गई और रिव्यू पिटिशन आई, उसके बाद और भी डिवीजन आई और वो मुकम्मल तौर पे हील नहीं हो सके। ज़ाहिर है कि वक्त के साथ ये डिवीजन जो उसका अपना इम्पैक्ट है वो तो उससे गुजरना पड़ेगा, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि और हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, जिस मिजाज की शख्सियत है उनकी, कोई रीज़न नहीं है कि ये डिवाइड कम ना हो और उसके लिए ज़ाहिर है कि कोर्ट के अंदर से एफर्ट बहुत ज़रूरी है और उसका पहला जो कदम होगा वो एक फुल कोर्ट मीटिंग हो, वो बहुत ज़रूरी है। हम सब सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वो मीटिंग फौरन बुलाई जाए ताकि इन हाउस कैंडिडेट डिस्कशन हो। दूसरी चीज़ जो डिवाइड करती है अदालत को वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी का जो एक प्रिंसिपल है, मैं समझता हूँ उस पर क्राइटेरिया की ज़रूरत है। एब्सोल्यूट सीनियरिटी प्रिंसिपल तो शायद मैं भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सीनियरिटी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है और जो भी हम क्राइटेरिया तय करेंगे उसमें बड़ा रेलेवेंट कंसिडरेशन सीनियरिटी होगा और इसमें कोई रीज़न नहीं है कि कंसेंसस पैदा हो जाए, रूल्स बना लिए जाएं, वो उसके बाद ये दोनों चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो असल ताकत है वो उसकी यूनिटी में है। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि नून लीग का इलेक्शन से फरार का मतलब है उन्हें अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। पंजाब में इलेक्शन का बाइकआउट करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। पार्टी अहदेदारान के वफ्द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार हुक्मरानों को महफूज रास्ता दे रही है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। PDM को हर सूरत इनसे मुज़ाकरात करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर इलेक्शन कराने के लिए नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में गैर जमहूरी अमल को परवान चढ़ाना चाहती है, इसे सियासी शहीद नहीं बनने देंगे।
اور چین سے کمرشل قرض کی مد میں $30 کروڑ موصول ہونے کے بعد اسٹیٹ بینک کے زیر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مرکزی بینک کے ذخائر $39 کروڑ 40 لاکھ بڑھ کے $4 ارب 43 کروڑ ہو گئے ہیں۔ کمرشل بینکس کے ذخائر $60 لاکھ اضافے سے $5 ارب 53 کروڑ 20 لاکھ ہو گئے۔ مجموعی ملکی ذخائر $40 کروڑ اضافے کے بعد $9 ارب 96 کروڑ 40 لاکھ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونا $26 مہنگا ہو کر $2000 فی اونس پر پہنچ گیا۔ مقامی مارکیٹ میں ایک تولہ سونا $1350 مہنگا ہو کر $2,18,200 کا ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع ہنزا میں تیسرے روز بھی بارش اور برف باری ہوئی، سردی واپس لوٹ آئی۔ ضلع ہنزا میں 3 روز سے بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ سے متعدد وادیوں کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ وادی چپورسن اور وادی شمشال میں شدید برف باری کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ خوبانی، چیری، بادام کے درختوں پر کھلنے والے پھول بارش سے خراب ہو گئے، جس سے زمینداروں کو شدید نقصان کا خدشہ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے dunianews.tv۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا۔